Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. I am your SS teacher. My name is Prashant Bhatt. Students, I am going to teach you the SS throughout the year, and as you all of know that SS is the subject which is consisting three different portions: the history, the social and political life, as well as the geography. So among those three sections, in today's session we are going to start with the history. But before getting into the history, let me tell you certain things. Uh, in the previous classes, you know many things about the geography, right? And in the geography, there were many concepts which are going to be useful in the study of the history too. That means each and every sections are interlinked to each other. On the base of history, the society is built up, right? The political administration is built up, right? And that is also built up on the basis of the geography. So all the three segments are very much interlinked. वो तीनों एक साथ में बहुत ही अंदर अंदर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के आधार से उसके डिसीजन लिए जाते हैं. बट आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो दैट इज नॉट बेसिकली द कोर्स ऑफ द syllabus, right? I'm going to talk to you about the method, right? The different skills. तो बहुत सारी ऐसी different skills होती है जो हमें स्टडी में हेल्प करती है. ज्यादातर टाइम पे होता क्या है, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फाइंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि जिन लोगों को हिस्ट्री जो है वो एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू रिसाइट. बहुत सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी होती है, राइट? तो मेमोरी पावर बहुत ज्यादा यूज होता है और उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट फीलिंग बोर्ड व्हाइल दे आर studying the history. So today I'm going to tell you an innovative idea by using what you can easily recall the steps of the history, right? और बहुत ही easily आप history को समझ पाओगे and ये एक boring subject ना होकर आपके लिए एक interesting subject बनेगा, right? So आज हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ स्किल से कि जो स्किल हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगी. सी करंटली यू ऑल आर स्टडिंग ऑनलाइन, बट व्हेनेवर the offline school starts or whenever you start studying at yourself, then you will be studying the textbook of the history too, right? And the history textbook is a kind of thing where you will find numerous questions for your own, right? तो वहां पे आपको एक जो स्किल में जो डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ, राइट, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सबसे पहले जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट को, राइट, स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री एंड एसपीएल, तो वहां पे द रीडिंग बिकम्स वेरी मच एसेंशियल. तो टेक्स्ट बुक हमें बहुत ही रीड करना पड़ता है और जब हम उसको रीड करते हैं, राइट, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वी आर having our complete concentration on the textbook only. So how can you do that, right? So now I'm driving you to a wonderful journey of the knowledge that how to manage the history to be interesting, not the boring one, right? So let us learn this important skill that will be helpful to you in middle school. Once you come into the middle school, that means the 9th and 10th standard, this trick is really going to work for you very well, right? Because using this skill you will be able to recite the things easily. कई बार क्या होता है, at the time of examination you start revising everything and you mix it up, right? अगर ये प्रैक्टिस आप पहले से कर रहे हो, जो प्रैक्टिस मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, if you are doing this practice very well, right, from the startup, it is really going to help you during the examinations too, right? So let's have a look about that particular skill, or what we can say it's a technique. So students, here are the steps to read a history book, right? यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स के जिसकी मदद से हमें हिस्ट्री बुक को स्टडी करना चाहिए और इसका रिजल्ट भी हम थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है हमारे लिए. तो जब भी हम हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को रीड करते हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ों को रीड करते हैं, राइट, तो तब हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है. तो बेसिकली तीन मेन स्टेप है जिसे हमें फॉलो करना है, राइट? वी विल नाउ लर्न द स्टेप्स वी मस्ट फॉलो व्हेन रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. जब भी आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से कोई चैप्टर रीड करते हो तो कौन से स्टेप को हमें जरूर से फॉलो करने चाहिए. सो फर्स्ट लेट अस ब्रेक दिस स्टेप्स इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एंड दे आर बिफोर रीडिंग अ चैप्टर, व्हाइल रीडिंग अ चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर. तो हमें रीडिंग करने से पहले क्या करना है, रीडिंग करने के टाइम पे क्या करना है और रीडिंग करने के बाद में क्या करना है,
राइट। ये 3 पार्ट के अंदर हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक का रीडिंग का जो स्टेप्स है उसको ब्रेकआउट कर लेते हैं, राइट। कुछ अलग अलग स्टेप है, यानी कि ये मेन स्टेप के नीचे भी एक सब स्टेप आएगा। सो मेन 3 स्टेप्स आर देयर बिफोर रीडिंग अ चैप्टर, राइट। तो पहले रीडिंग से पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद व्हाइल रीडिंग अ चैप्टर, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तो उसके बाद आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर, यानी कि रीडिंग हो गया उसके बाद क्या करना है, राइट। अगर ये चीजों को हमने ठीक से फॉलो किया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द ग्रेट रिजल्ट, राइट, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो सबसे पहला आता है द फर्स्ट वन, बिफोर रीडिंग अ चैप्टर। चैप्टर रीड करने से पहले क्या, तो सबसे पहले जब भी हम चैप्टर रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो उससे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुक एट द टाइटल। सबसे पहले तो हम टाइटल को रीड करेंगे, राइट। यानी कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल क्या है, राइट। सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। देन डू अ पिक्चर वर्क। पिक्चर वर्क यानी कि जितने भी पिक्चर्स आपको दिखाए गए हैं, राइट, उन सारे पिक्चर्स को आप थॉरली देख लोगे एक बार, एंड देन स्किम द टेक्स्ट, और स्किम द टेक्स्ट यानी कि उसके बाद जो टेक्स्ट है, राइट, उसका ऊपर ऊपर से हमें रीडिंग करना है। सो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम करेंगे लुक एट द टाइटल। मान लो कोई चैप्टर आपको दिया गया है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, तो सबसे पहले हमने ये रीड कर लिया, राइट। तो ये टाइटल हमने देख लिया। तो व्हेन यू सी इट थिंक व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, राइट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई स्टडी कब होता है पता है, जब भी हमें लगे कि नहीं यार इसके बारे में थोड़ा कुछ तो जानता हूँ लेकिन इसमें से मुझे कुछ और जानने को मिलेगा। जब भी ऐसा सोच के आप रीडिंग करते हो तो रियली ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पूरा टॉपिक जो है उसका नाम देखना है। आफ्टर रीडिंग द टाइटल यू विल हैव टू थिंक ऑन योर ओन दैट व्हाट डू आई नो अबाउट दिस टॉपिक ऑलरेडी, अबाउट दिस टाइटल ऑलरेडी। यानी कि विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, अगर ये है विमेन यानी कि स्त्री, कास्ट यानी कि जो हमारी कास्ट होती है अब ऑन द बेस ऑफ आवर रिलीजन, राइट। और उसके बाद होता है रिफॉर्म यानी कि बदलाव, राइट। तो नारियों के बारे में, कास्ट के बारे में और बदलाव के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था मुझे क्या पता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में सोचने वाला हूँ, राइट। आफ्टर थिंकिंग दैट देन वी डू द पिक्चर वॉक, यानी कि उस पूरे चैप्टर में जितनी भी इमेजेस है, जितने भी मैप्स हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, राइट। और ये देख के हम ये सोचेंगे कि व्हाट डू दिस ऑल मटेरियल ट्राई टू से मी, राइट। ये क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, इससे मुझे क्या पता चलेगा, ये पिक्चर कौन सा है, ये मैप कौन सा है, इससे मुझे क्या जानने को मिलेगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम रीडिंग नहीं कर रहे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। पूरे चैप्टर के अंदर जो जो चीजें दिखाई है उसका हम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे माइंड में उसके जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट रीडिंग की प्रिपेयर्डनेस हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो टाइटल है वो टाइटल देखा और टाइटल के बारे में हमने सोचा दैट व्हाट डू आई नो ऑलरेडी अबाउट दिस टॉपिक। उसके बाद हमने क्या किया, देन वी आर गोइंग टू सी द होल चैप्टर्स पिक्चर्स एज वेल एज द मैप्स, कि कौन कौन से पिक्चर है, कौन कौन से मैप है, व्हाट डू आई नो अबाउट इट, right, and what are these all material trying to show me, right। इस मटेरियल, ये मटेरियल मुझे क्या दिखाना चाहता है, राइट। सो पहले वो मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा स्कीम द टेस्ट, यानी कि मैं सारे जो पैराग्राफ है वो सारे पैराग्राफ के ऊपर 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 से नजर डालूंगा, राइट, एकदम स्पीडीली। और उसके अंदर जो हेडिंग है, राइट, या फिर बोल्ड जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, या फिर इटालिक है, कुछ अलग सा टेक्स्ट है, राइट। पूरे लाइन के अंदर कहीं पे अगर अलग सा टेक्स्ट है तो वो सारा मैं ग्लांस करूंगा, एक बार मैं देख लूंगा, राइट। तो अगर मैंने चैप्टर रीडिंग स्टार्ट किया उससे पहले मैं ये चीजें पहले करूंगा, सबसे पहले मैं टाइटल देखूंगा, उसके बाद सारे पिक्चर्स को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये पिक्चर्स मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद में जो ऊपर ऊपर का जो टेक्स्ट है, जो मुझे बोल्ड दिखाई रहा है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, राइट, कि जिसके कुछ डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, तो वो सब मैंने पहले रीड कर लिया, राइट, वो ग्लांस कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर आई स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। नाउ वी रीड द चैप्टर, राइट। पहले हमने चैप्टर रीडिंग से पहले की जो प्रिपरेशन थी वो कर ली, राइट, दैट विल टेक ओनली 5 to 7 minutes बिफोर रीडिंग द चैप्टर। Now I am going to start reading the chapter itself. While reading the chapter, what are the practices should I do? So at first I'll stop and think. That is the first practice. Second practice is going to be the underline the unknown words. जो भी unknown words है उसको underline करें. And then third, stop after each paragraph. After each and every paragraph, I'm going to stop. तो जब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टॉप करके
सोचेंगे, राइट, रुक के सोचेंगे, उसके बाद जितने भी वर्ड्स हमारे लिए अननोन है, द न्यू वर्ड्स है, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप आफ्टर ईच पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के बाद हम थोड़ा रुकेंगे। तो वहां पे हमें करना क्या है ये देखते हैं। तो जब भी पहला स्टेप आप रीड कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ, डिड आई अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट रीड। मान लो कि वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म नाम का जो चैप्टर का कुछ थोड़ा सा हमें सेंटेंस दिया गया है, सो लेट अस चेक इट आउट। तो इसमें लिखा था, विडोज इन इंडिया ऑफन लिव्ड मिजरेबल लाइव्स, दे वर नॉट अलाउड मिंगल विद पीपल, दे वर नॉट इवन अलाउड टू वेयर क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइसेस, राइट। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, तो सबसे पहले तो मैंने ये सोच लिया कि चलो भाई, डिड आई अंडरस्टैंड दैट और नॉट। अगर मुझे समझ में आ गया, then I can go further. If I could not understand, then I'll have to read it again, so that you are going to understand the whole chapter in a single time reading only. The second, underline the unknown words. मान लो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे पता नहीं, जैसे कि मिजरेबल और मिंगल, ये दोनों वर्ड्स मेरे लिए नए हैं, राइट। तो मिजरेबल और मिंगल के नीचे मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर लूंगा, राइट। तो ये मैंने अंडरलाइन कर लिया ड्यूरिंग द रीडिंग ओनली, एंड देन स्टॉप आफ्टर ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के पीछे हम रुकेंगे, क्यों? To think about what its main idea was, and try to restate the paragraph, summarize in one line, right? तो पूरा पैराग्राफ खत्म होने के बाद सबसे पहले मैंने रुक के देखा कि यार मुझे ये पैराग्राफ समझ में आया या नहीं, मैंने जो अभी तक पढ़ाई की वो मुझे समझ में आया। उसके बाद जितने भी हार्ड वर्ड्स थे मेरे लिए, न्यू वर्ड्स, उसको मैंने अंडरलाइन किया, और उसके बाद हर पैराग्राफ के बाद में मैं रुकूंगा, राइट, और मैं सोचूंगा कि इस पैराग्राफ के पीछे का मेन आइडिया क्या है, और वो जो भी है उसकी मैं एक लाइन में समरी लिखूंगा, राइट। सो द सेम थिंग इज शोन ओवर हियर। सो अगेन आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ एंड द समरी ऑफ इट। सो सबसे पहले वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, तो ये टाइटल जो है उसका पैराग्राफ है। विडोज इन इंडिया ऑफन लिव्ड मिजरेबल लाइव्स, दे वर नॉट अलाउड मिंगल विद पीपल, दे वर नॉट इवन अलाउड टू वेयर क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइस। तो क्या मुझे समझ में आया, राइट? हार्ड वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए। उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि इसका मेन आइडिया क्या है। सो बेसिकली द मेन आइडिया इज, वो मैं सिंगल लाइन में लिख लूंगा एक तरफ साइड में, दैट विडोज इन इंडिया लिव डिफिकल्ट एंड सैड लाइव्स, कि जो भी विडोज थी इंडिया में वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुखद जीवन व्यतीत करती थी इन द एंशिएंट टाइम्स। सो these are the steps I am going to follow while I am reading a chapter. So सबसे पहले हमने देखा कि चैप्टर के रीडिंग से पहले क्या करना है, राइट? तो टाइटल देख लिया, राइट? टाइटल के बारे में सोच लिया, फिर पिक्चर्स और मैप्स देख लिए, राइट? फिर ऊपर से रीडिंग कर लिया। वो करने के बाद मैं वापस रीडिंग में जाऊंगा। सो एट द टाइम ऑफ रीडिंग में क्या करूंगा, तो मैं थोड़ी देर पे रुक के सोचूंगा, जो हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स उसको अंडरलाइन करूंगा, और एट लास्ट पूरा जो पैराग्राफ अगर समझ में आ गया तो 1 या 2 लाइन के अंदर उसका पूरा समरी लिखूंगा। तो ये हो गया रीडिंग का टाइम। अभी रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर। तो जब आप चैप्टर रीड कर लेते हो तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये है, आस्क योरसेल्फ। पहले आप अपने आप से पूछो, व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन डिड आई जस्ट लर्न, कि मैं कौन सी नई इंफॉर्मेशन अभी सीखा हूं, राइट? कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली है जो मुझे पहले पता नहीं थी, राइट? दैट विल वेक अप सम इंटरेस्ट इन योरसेल्फ। वो आपके अंदर कुछ नए इंटरेस्ट जगाएगा, दैट विल मेक यू टू टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। और कभी भी ये सब्जेक्ट आपको फिर बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है। उसका पीछे का एक रीजन ये होता है कि सेल्फ रीडिंग जब करते हैं ना, तब वो इजीली समझ में नहीं आता। अगर इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली उसको समझ पाओगे, याद रख पाओगे, एंड डेफिनेटली अगर इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया आपने तो यू कैन इवन स्कोर द गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो सबसे पहले आपने अपने आप को पूछ लिया कि आपने अभी क्या इंफॉर्मेशन नहीं ली। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके लिए आता है, व्हाट न्यू वोकैबुलरी डिड आई लर्न, कौन से नए वर्ड्स है जो मैं अभी सीखा, क्योंकि वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इट इज नॉट ओनली फॉर द एसएस, राइट? द वर्ड्स आर देयर यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको नए वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट? अभी अगर आप अपनी स्पीच को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो जितने आपके पास ज्यादा वर्ड्स होंगे उतनी अच्छी और उतनी अट्रैक्टिव स्पीच आप बना पाएंगे, राइट? सो रिकैप करेंगे कि कौन से नए नए वर्ड्स में आज सीखा, और द लास्ट स्टॉप एंड थिंक, व्हाट क्वेश्चंस डू आई स्टिल हैव। अभी और कौन कौन सी चीजें हैं, रुको और सोचो कि कौन कौन सी ऐसी और चीजें हैं कि जिसके लिए मुझे अभी भी क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं कि जिसका आंसर नहीं मिला।
नहीं मिला, simply come to me and I'll answer your questions. So that's it. So these are the steps guys. तो बेसिकली सारे जो स्टेप है उसको हम यहाँ पे एक साथ में समराइज करते हैं. तो अगर आपको हिस्ट्री को ठीक से रीड करना है, ठीक से सीखना है और उसको याद रखना है, राइट, तो उसके लिए हम चैप्टर को रीड करेंगे और रीड करने के लिए ये जो स्टेप है इस स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं. द फर्स्ट स्टेप इज बिफोर रीडिंग अ चैप्टर. उसमें हम क्या करेंगे, विल लुक एट द टाइटल एट फर्स्ट एंड देन विल थिंक दैट व्हाट डू आई नो ऑलरेडी अबाउट दिस टाइटल, right? Afterwards we are going to do a picture walk. That means swiftly we are moving to picture to picture, right? We are going to glance at each of the picture and then we'll try to think that what these pictures are trying to show me, right? After thinking that, we are going to skim the text, right? That means ऊपर से हम पूरे text की reading करने वाले हैं. जितने भी टैक्स है, जितने भी पैराग्राफ है, उसमें जितने भी टाइटल्स है पैराग्राफ के, या फिर उसमें जो बोल्ड लेटर से जो लिखा हुआ है, कुछ स्पेशल मार्क्स करके क्वोटेशन मार्क्स में जो लिखा हुआ है, वो सारा हम पहले रीड कर लेंगे, राइट? और उससे हम थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, राइट? उसके बाद जब भी हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं, एट दैट टाइम रीड करते करते थोड़ी थोड़ी देर पे हम रुकेंगे और सोचेंगे, राइट, कि क्या मैंने अभी तक जो पढ़ा वो मुझे समझ में आ गया. इफ यस विल गो फर्दर, इफ नॉट देन विल रीड इट अगेन. तो वापस हम उसको रीड करेंगे. जब तक पूरा समझ में ना आए विल गो फॉर द रिपीटेड रीडिंग. तो ये हो जाने के बाद वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द अननोन वर्ड्स. जितने भी वर्ड्स हमारे लिए नए हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे, जिससे हमारा वोकैबुलरी बढ़ेगा और नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे. And at last we are going to make the summarization, right? We are going to summarize each and every paragraph, right, in the small titles. 1 या 2 सेंटेंस में हम पूरे पैराग्राफ को समराइज करेंगे. हम देखेंगे, राइट, हम पूरा रुक जाएंगे और देखेंगे, चलो भाई ये पैराग्राफ मुझे समझ में आ गया, इस पैराग्राफ का मेन मीनिंग ये है, तो उसको हम समराइज करके लिख लेंगे. सो रीडिंग करने से पहले की प्रैक्टिस होगी, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी. उसके बाद रीडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले हम अपने आप से पूछेंगे कि व्हाट डिड आई लर्न, मैं क्या सीखा, राइट? इसमें से कौन सी नई चीज ऐसी है जो मुझे आज सीखने को मिली, right? The second thing we'll think about is the recap new words. We are going to look at each and every words what we have got just today itself. आज के रीडिंग में हमें पता चला कि ये सारे नए नए वर्ड्स हैं जो मुझे पता नहीं थे, जिससे आपका वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रोवाइज होने वाला है. एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं, राइट? जिसके आंसर्स मेरे पास नहीं है, और जिसके आंसर आपके पास नहीं है, you can come to your teacher and your teacher will explain each and everything. So this is the basic technique, this is the basic trick that how you can enhance your reading so that at the time of the examination the revision becomes very much easier for you. क्योंकि जब आप पहले पढ़ाई कर रहे थे तभी आपने उसको पूरा समझ लिया था, और अगर किसी चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं फिर उसके रिवीजन करते वक्त, उसको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करते वक्त, इट बिकम्स वेरी मच इजियर टू रिमेंबर देम, राइट? और यही आपका मेमोरी पावर भी बढ़ा देगा, राइट? सो दैट वाज द टेक्निक गाइस. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि कैसे हम अपने रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक से अगर हम रीडिंग करेंगे, राइट, तो हमें कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा, राइट, उसमें हमारा मेमोरी भी बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा. तो आज के सेशन में सिर्फ यही बताना था. अभी एक होमवर्क आपको घर पे करना है, एक एक्टिविटी घर पे करना है. इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ द हिस्ट्री, राइट, देन डू इट फॉर अ स्पेसिफिक पेज. यानी कि मान लो फर्स्ट चैप्टर का कोई भी एक पेज निकाल के आप उसका स्टडी कर सकते हो, या फिर फाइंड एनी ऑफ द बुक व्हिच हैज द पिक्चर्स एंड मैप्स एंड एवरीथिंग एंड ट्राई दिस प्रैक्टिस वंस. और ये प्रैक्टिस करने के बाद ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, सी आपने बिफोर रीडिंग, राइट, तो पहले आप क्या जानते हैं, फिर पिक्चर आपको क्या बताना चाहते हैं, फिर उसका मेन टेक्स्ट क्या है वो नोट कीजिए. उसके बाद जब रीड कर रहे हो तब आप सोचिए, समझ में आ गया, फिर जो भी नए वर्ड्स है तो आप नए वर्ड्स अंडरलाइन करने की बजाय बुक में अलग से लिखेंगे, फिर उसका समरी लिखेंगे. हर एक पैराग्राफ का आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ रीड करना है, राइट? तो तीनों पैराग्राफ की समरी आप 2-2 लाइन में लिखेंगे और उसके नए वर्ड्स लिखेंगे, और फिर उसके बाद में आप छोटा सा समरी लिखेंगे कि आपने क्या नया सीखा, राइट? फिर नए वर्ड्स जो है उसको आप याद करेंगे, दैट इज योर प्रैक्टिस. एंड स्टिल कौन सा क्वेश्चन है जो आपने रीड किया उसमें से समझ में नहीं आया, तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है. डू इट योरसेल्फ. और उसके बारे में जो भी आप लिख पाते हो, जो भी आप प्रिपेयर कर पाते हो, डू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, राइट? आई विल चेक इट एंड देन विल टॉक इन अ लाइव सेशन नेक्स्ट टाइम. जब हम लाइव मिलेंगे तब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल रहा है, एंड वी आर गोइंग टू गेट योर रिव्यूज टू, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, राइट?
In tomorrow's session, I am going to come with certain new techniques or new skills. But till then, it is time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, take care of yourself as well as your family. Thank you.